Hello students, how are you? Hope you all are going good and your studies are also going well. From next week you are having your fourth unit test, so be prepared. So today we are going to start our fifth chapter, The Aligned Planet, The Green Movement Role, written by Nani Palkhiwala. ठीक है? So the introduction of the chapter is, see, I just want to ask you something. The main uh, the main idea behind the chapter is that earth is dying. Earth, and what we can do to save our earth due to globalization, due to pollution, due to forest deforestations, due to so many things. Now we have to save our earth. In the picture you can see the earth is crying, and earth himself is telling कि save me. Okay, so they have taken a green movement revolution. Okay, I just want to ask you one question. How many people use air condition, AC, in 2020? Tell me the answer. How many percent of people used air condition in their homes? Find the answer and think about it. Okay. Okay, so introduction is like Nani Palkhiwala article on the declining health of the earth was written in 1994. The issue that is arised in the context are not improving but worsening. The situation is alarming. The thinkers are now creating breathing awareness to save the earth from going to dogs. Man himself can make or mar his destiny. He can save human race or destroy all form of life. The present dedication are not encouraging any hope or improvement. This was the simple introduction of the chapter के what where man is going. This is only in the hand of man कि वो अर्थ को बचा सकता है या मार सकता है, या तो फिर अर्थ पे रहने वाली जितनी भी छोटी छोटी क्रिएचर्स है उसका सब को या तो ज़िंदा रख सकता है या तो फिर वो उसको डिस्ट्रॉय होने देगा, या धीरे धीरे सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग. आप ग्लोबल वार्मिंग कह लो, पॉल्यूशन कह लो, आप कुछ भी कह लो, डिफॉरेस्ट्रेशन कह लो, आप कुछ भी कह लो. सो मैनी रीजंस आर देयर बिहाइंड द कि हम अपने अर्थ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. धीरे धीरे वो हमसे बहुत सारी चीज़ें नेचुरल वे से जा रही है. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग for what we have to think about it. Okay, now, so students, now I am going to give you little summary of the chapter. ठीक है, as you know कि this is an article written by Nani Palkhiwala and published in Indian Express on November 24th of November 1994. See how many years has passed. Issue is still same, still there. वर्स से और वर्स हुआ है, ज़रा भी उसमें चेंजेस नहीं आया है. द इशू, द आर्टिकल इज, this is an article written by Nani Palkhiwala and published in the Indian Express on 24th of November 1994.
94. The issue that he raised regarding the declining health of earth. क्या इशू उन्होंने किया था कि मुझे अर्थ की हेल्थ के ऊपर उनको इशू आ रही है. कंटिन्यू टू हिज रिलेवेंस. द ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्टेड इन 1972. फर्स्ट ग्रीन पार्टी was formed in New Zealand 25 years ago. The author explained the change in the perception of people from materialistic view of comprehensive and ecological view of the world. This means people are not getting concerned about their own environment. Okay, this means that people are not so much concerned about their own environment and what happened, what the consequences are coming. The people are not aware of that. Okay, in this view our earth is considered as a living organism. It is considered as a having its own metabolic process as all living beings have, in that article Nani Palkiwala has written that he is considering earth is a living organism and it has its own metabolism. Okay, then he explains the concept of sustainable development of 1987 meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their needs. For example, we should utilize our natural resources in such a way that we fulfill our present needs as well as conserve them for our future generation. Means natural resources means what? The things that is given by nature in the form of gift. So we have to consume that, we have to take care of them and we have to preserve them for the future, for our future generation. Okay, so we have to use that natural resources in a systematic manner. Okay, students, and all is not well without our planet, the earth. It is ailing or sick. ailing का मतलब sick होता है, ठीक है. एंड ऑल यानी पोएट ऑथर बोलना चाहते हैं कि मेरा प्लैनेट सिक होता जा रहा है, बीमार होता जा रहा है, इसकी मुझे बहुत परवाह है. और वो बोल रहे हैं अगर मैं उसको नहीं बचाऊंगा तो वो नहीं बच पाएगा, धीरे धीरे वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा और हम हमारे आने वाली जनरेशन को क्या दे पाएंगे. ठीक है, तो मेरा प्लैनेट बीमार है. अगर हमारे घर में हमारा कोई फैमिली मेम्बर अगर बीमार होता है, तो अगर उसको सीवियर बीमारी होती है तो हम क्या करते हैं, ज़मीन आसमान एक कर देते हैं हमारे घर की. अगर उसको बहुत सीवियर अगर कोई बीमारी है कि डिजीज़ हुई है तो व्हाट वी डू, हम हमारे वी कैन सेल और सोल्ड एवरीथिंग. ठीक है, हम सब कुछ बेच देते हैं उनको बचाने के लिए. तो ये तो पूरा अपना अर्थ है बच्चा. सो व्हाट, हम उसको बचाने के लिए तो हमको क्या क्या करना पड़ेगा. ठीक है, तो एंड ऑल बिकॉज ऑफ आवर ओन वीकनेसेस. और ये सब क्यों हो रहा है, हमारा प्लैनेट बीमार क्यों है, कि हमारे खुद की वीकनेसेस की वजह से. वाइज एंड मिसडीड्स, हमारे बहुत जो चीज़ें हैं जो हमारे मिसडीड्स करी हुई है, अच्छे से हमने किया नहीं है, इसलिए हमारी प्लैनेट बीमार हो गई है. द अर्थ इज़ फेसिंग न्यूमरस एंड बिग प्रॉब्लम्स. बहुत सारे न्यूमरस बिग प्रॉब्लम्स हैं. द मैन हैज़ टेकन ऑल द गिफ्ट ऑफ नेचर फॉर ग्रांटेड. देखिए, जैसे ह्यूमन हैज़ टेकन,
जो भी चीज़ें नेचर ने हमें दी वो गिफ्ट हमने टेकन फॉर ग्रांटेड ले ली हैं, ठीक है। वी हैव टेकन इट फॉर ग्रांटेड कि चलो ठीक है, बारिश आ रही है, मिल रही है, सनलाइट आ रही है, सन हो रहा है, सीजन्स आ रही है, ये सारी चीज़ें, प्लांट्स उग रहे हैं, सारी चीज़ें हमें मिल रही है, तो हमने ये सारी चीज़ों को एक पार्ट ऑफ अवर डेली रूटीन की तरफ ले लिया है, हम उसको कंसिडरेशन में नहीं ले रहे हैं। ही हैज़ बीन exploiting all the natural resources madly and in excess, madly and is excess, okay। he is doing so in the name of development। अब हम ये बोल रहे हैं कि हम ये डेवलप कर रहे हैं इसलिए इसका ये हो रहा है, ये डेवलप हो रही है, बट द रियल प्रॉब्लम इज his selfish motive। he think he has absolute right over the land, the sea and what lies deep below in the earth। कि इंसानों को क्या लगता है कि वो सब उसकी प्रॉपर्टी है, उसका राइट है, जो लैंड है वो उसकी है, सी उसका है, और उसके अलावा जो लैंड के नीचे है वो सारी भी चीज़ें ह्यूमंस की है और वो उसको जब चाहे जैसे चाहे इस्तेमाल करता है, ठीक है। हमने उसको बहुत सारी चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड वे में, वी हैव टेकन मोस्ट ऑफ द थिंग्स एज इन टेकन फॉर ग्रांटेड, ओके। ओवरयूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज and their side effect have made the earth inhabitable not only for the present generation but also for those who will come hereafter। हमने जो लिमिटेड रिसोर्स था उसको साइड इफेक्ट्स को इनहेबिटेंट कर दिया है, और जो हमारी प्रेजेंट जनरेशन है उसके लिए भी हमने उसको प्रॉब्लम में डाला है, और जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए भी हमने उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। इन द लास्ट 100 years or so we have done the greatest damage to the earth। we have polluted the earth, soil and water। we have created shortage of all things of our basic needs। In 1972, from the first time, the people realized the danger to the very extent of our race and the urgent need to check। यानी इनको सबको पता कब चला? In the year 1972 कि भाई इतनी खराब हालत हो रही है और होने वाली है। The first green movement started in New Zealand। The panic gripped the imagination of the entire human race। Humans are becoming materialistic, they are living a materialistic life। आपको इस कोरोना के टाइम पे स्टूडेंट्स और इन पेंडेमिक के टाइम पे आपको एक बार आपको सोच आई होगी कि यार हम कितने भाग रहे थे, हम कितने दौड़ रहे थे, किसके पीछे हम दौड़ रहे थे, कितनी दुनिया फास्ट जा रही थी, ठीक है। और बिकॉज ऑफ दिस कोरोना एंड पेंडेमिक जब हमको लॉकडाउन हुआ, हम घर पे रहे, मंथ 2 month 3 month, हमें न्यूज़ आती है कि गंगा रिवर क्लीन हो गई। जो इतने करोड़ों रुपए लेके क्लीन नहीं हो सकती थी वो बहुत क्लीन, एक अंश पे द रिवर वॉज क्लीन। और आई गॉट वन SMS, अ पिक्चर फ्रॉम माई फ्रेंड दिल्ली। वो ऐसा बोल रही थी कि मैं दिल्ली में बैठी हूँ और मुझे बहुत दूर पहाड़ें दिख रही है, क्लीन मुझे स्काई दिख रहा है। सो बिकॉज ये सब क्योंकि कभी कभी हम इंसानों ने जो बिगाड़ा है वो ऊपर वाले को ठीक करना पड़ता है, ठीक है। आई एम नॉट टेलिंग कि इसकी वजह से ये चीज़ हुई, बट ड्यू टू दिस चलो नेचर को थोड़ी
प्योर चीज़ मिली हमें भी, ठीक है। सो थिंक अबाउट इट कि हम कौन से वे में जा रहे हैं। हमारे नेचर को, हमारे अर्थ को वी आर डैमेजिंग अ लॉट। वी आर नॉट गिविंग देम बैक सम एनीथिंग, बट वी आर टेकिंग एंड टेकिंग। ओके, देयर came a shift in our outlook. We started taking the holistic view of the world as a whole and not in a terms of national interest. This change proved revolutionary for the first time in human history. The people began to see the world as a living organism, as one body, all its needs, and as one body, all its needs and parts have to be respected, prevented and used sensibly. ठीक है, यानी इतने सालों में जब न्यूजीलैंड में ग्रीन मूवमेंट शुरू हुई तो इन 1972 पीपल रियलाइज्ड दैट कि जो अर्थ है, जो लैंड है, वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उसको एक लिविंग ऑर्गेनिज्म समझा जाए और उसको भी एक प्रिवेंटिव और सेंसिबल मेजर में काउंट किया जाना चाहिए, ठीक है। The fact is that we are sharing the earth with lakhs of living creatures. Now what is that? We are sharing our earth with lakhs of living creatures, big and small. Most of them are nearing their ends because we have multiple dangerously. The foremost question before us is whether we are going to leave our great grandchildren a planet with advancing desert and an alien environment. Our entire economic system is based on 4 sources: fisheries, forest, grassland and cropland. These also supply our food and raw materials for our industries. ये सारी चीज़ें हमारी इकोसिस्टम किस पे 4 चीज़ों पे बेस्ड होती है: फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड। सो ये सारी चीज़ें हमारे फूड एंड रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज से मेन सोर्स है, ठीक है। Then what happens? Then below the earth surface lie deposit of minerals and crude oils. अब अर्थ सरफेस के बिलो क्या है? इकोसिस्टम किस पे 4 चीज़ों पे कंसिडर करती है, ठीक है। फिशरीज, प्लांट्स, ग्रास एंड 4th वन इज, ठीक है। अब अर्थ के बिलो नीचे क्या है? क्या चीज़ें डिपॉजिटेड हैं कि मिनरल्स एंड क्रूड ऑयल्स। इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वी हैव एक्सप्लॉइटेड दिस सिस्टम्स टू अ पॉइंट दैट दे आर ऑलमोस्ट कोलैप्सिंग। हमने उनका इतना यूज़ कर लिया है, ओवर यूज़ हो गया है कि धीरे धीरे वो सारी चीज़ें कोलैप्स हो रही है, ख़त्म हो रही है, मर रही है। द फिशेज आर फास्ट डिसअपियरिंग इन रिवर्स एंड द सी। फिश जो है वो ख़त्म हो रही है। बहुत सारी फिशेज हैं जो अभी हमें देखने नहीं मिल रही है, बहुत फास्टली ख़त्म हो रही हैं। ग्रासलैंड आर टर्निंग इनटू वेस्टलैंड। जो ग्रासेस हैं वो धीरे धीरे वेस्टलैंड में ख़त्म हो रहे हैं। द एग्रीकल्चर इज़ ऑन इट्स लास्ट लेग। एग्रीकल्चर है जो हम एग्रीकल्चर पे बिलोंग करते हैं, तो वो भी उसके लास्ट पैदान पे है। हम ऐसे बोलते हैं ना, लास्ट पैदान पे है, तो वो उसके लास्ट पैदान पे है। मैनी स्पाइसेस ऑफ लाइफ आर फेसिंग एक्सटेंशन
as a result of this destructions of forest for more space and to meet the need of firewall. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम आगे बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है हमें, ठीक है, हमारे अर्थ इज़ फेसिंग दिस प्रॉब्लम्स. तो एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ living being, what we have to do, that you have to think on it. Okay, as forests grow smaller, the desert overtakes. People use cow dungs, not a natural fertilizer but for burning the cooked food. ठीक है, अब हम पीपल यूज़ क्या कर रहे हैं कि काउडंग है उसको हम फर्टिलाइजर के हिसाब से यूज़ नहीं कर रहे हैं, बट हम क्या कर रहे हैं, हमारा खुद का खाना पकाने के लिए हम काउडंग का यूज़ कर रहे हैं. वी टुडे आर लूजिंग ऑलमोस्ट 2 acres of forest per second. Our constitution provides that the state shall protect the environment, the forest and the wildlife, but laws are never respected. Our Indian constitutions have the laws, rules and regulation, but what people are doing, never follow the rules, never follow the laws, never follow, respect the laws, nor enforced in India. कहीं पे भी होता नहीं. It is in line with the laws to end untouchability, bonded labor and casteism. ये चीज़ें सारी लाइन अप है पर कभी किसी का कुछ होता नहीं है. A study conducted by the UN warns that the environment is a critical stage in 88th century countries investigated. अब 88 कंट्री ने इन्वेस्टिगेट किया और ये पता लगाया कि एनवायरनमेंट है वो क्रिटिकल स्टेज पे आके खड़ी हो गई है. व्हाट आफ्टर ऑल, अब ये क्या करेंगे, आर द फैक्टर्स merging the future of human society. On top of all the evils is pollution growth. Every 4 days the world population increased by 10 lakh people. In 1800 the total world population was 100 crores. By 1900 the number rose to 200 crores, but by the end of 2000 century the population is touching 600 crores. See the bifurcation. 18th century में 100 crores population, 19th century में 20 crores and 28th centuries जब आ रही है तो हमारे पास 600 crores की population है. What is this all? The only way to check the number is all around development, widespread education and better income, but all development comes to zero with the increase in population. As the rich get richer, poor produce more children and remain poor. अब क्या हो रहा है कि एजुकेशन बेटर हो रहा है, इनकम बढ़ रही है, सब कुछ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, बट कुछ हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है. रिच पीपल आर बिकमिंग मोर रिचर, पुअर पीपल प्रोड्यूसिंग मोर चिल्ड्रन डे बाय डे एंड बिकमिंग रिमेन पुअर एट द सेम लेवल. ओके, उनका कोई अपग्रेडेशन हो रहा. शुड मैनफोक बी स्टरलाइज्ड लाइक कैटल. अब क्या बोल रहे हैं, द बेटर वे टू इज़ वॉलेंट्री फैमिली प्लानिंग. अब क्या बोल रहे हैं कि जब कैटल्स लोगों का फैमिली प्लानिंग करते हैं तो वैसे ही इन मैंस का भी कर दें, क्या करना चाहिए, टू स्टॉप इन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. ठीक है, तो उससे अच्छा क्या है कि बेटर वे इज़ व्हाट के द बेटर वे इज़ के
वॉलेंटरी फैमिली प्लानिंग करें तो दैट इज़ अ बेटर वे टू कंट्रोल पॉल्यूशन, मस्ट गेट टॉप मोस्ट प्रायोरिटी इफ़ वी वांट टू सर्वाइव। अब हमारे पास सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है जो हमें करनी है, तो वी हैव टू कंट्रोल ऑन पॉपुलेशन। तो वॉलेंटरी अगर हम ये स्टेप उठाएंगे तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियरी। ओके, we need to protect our environment from pollution. It is our only passport for the future. अगर हम हमारे environment को pollution से बचाएंगे तो ही हमें पासपोर्ट मिलेगा फ्यूचर में जाने के लिए, हेल्दी लिविंग के लिए। अदरवाइज दिल्ली में देखो, दिन दहाड़े कहीं पूरे दिन रात आपको पॉल्यूटेड एयर मिलती है, इसकी वजह से लंग्स में प्रॉब्लम, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम, हार्ट में प्रॉब्लम, एम्पल ऑफ प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, बिकॉज नो फ्रेश एयर। ठीक है, तो हमारे फ्यूचर को में जाने के लिए हमें, अगर हम पॉल्यूशन को कंट्रोल करेंगे तभी हम अच्छा फ्यूचर देख सकते हैं। इंडस्ट्रीज कैन प्ले अ क्रूशियल रोल इन कीपिंग अवर एयर, वाटर एंड सॉइल क्लीन। नो जनरेशन हैज़ अ फेयर फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ। किसी को, जो अपनी जनरेशन है, उनको कोई भी फ्री होल्ड नहीं मिलेगा अगर हम ये सब चीज़ों को कंट्रोल नहीं करेंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी बोलना पड़ेगा, दे हैव टू टेक गुड केयर ऑफ द एनवायरनमेंट। एयर पॉल्यूशन को रोको, वाटर पॉल्यूशन को रोको, सॉइल पॉल्यूशन को रोको, सॉइल इरिगेशन को रोको, सो दैट आवर पॉल्यूशन मे बी रिड्यूस। ओके, वी हैव टू got only life tendency. Okay, we have not inherited it from our forefather, we have borrowed it from our children. हमें हमारे forefather से मिली हुई इनहेरिट, हमें कोई ये सारी चीज़ें हमें हमारे पूर्वजों से नहीं मिली है, बट हम हमारे चिल्ड्रन के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं कि हम ये उनको दे नहीं रहे हैं। ठीक है, जो हमें मिला है वो हम उन्हें दे नहीं रहे हैं। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू बी पर्टिकुलर इन यूजिंग आवर एनवायरनमेंट एंड एवरीथिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप this is the chapter of the green movement and what we have to do to save our environment. Okay, earth is our living organism, so what we can do to save our earth. Okay.